इमेजिन दिस, आप अपना देश छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स आते हो बड़े बड़े सपने लेकर और ढेर सारा पैशन बैग में भर के, लेकिन यहाँ पहुँचने के कुछ ही महीनों बाद आपको पता लगता है कि यहाँ का पॉलिटिकल क्लाइमेट ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी कर चुके हैं और उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी भी फुल फ्लेजेड फोर्स में इम्प्लीमेंट हो रही है। टैरिफ वॉर्स एस्केलेट हो जाती हैं, यूएस बिजनेसेस स्टार्ट ऑफशोरिंग देयर ऑपरेशंस एंड वीजा स्क्रूटनी आल्सो इंक्रीजेस। ये सारे फैक्टर्स काफ़ी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हवा टाइट करने के लिए, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन 2025. But amid the turbulence, something crazy is happening. Opportunities are brewing slowly. So in 2025, if you're strategic enough, you can turn this turbulence into massive career advantage. Because in Trump's America in 2025, pursuing an MS degree is just not enough. It's about pursuing the right MS degree which is aligned to US economic interests, job trends and changing scenarios of industries in the US. So इस वीडियो में हम exactly वही decode करेंगे. We'll give you most job friendly and future proof MS programs जिनको pursue करने से आपकी employability factor बढ़ जाएगा. तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, मेरा नाम है शीतल, I am the founder of DueSpaid, जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को करते हैं आसान. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं. तो आइए आज की वीडियो पे वापस आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द कोर ऑफ ट्रम्प्स इकोनॉमिक प्लेबुक, bringing back manufacturing and achieving self-sufficiency in semiconductors. आपको शायद पता नहीं होगा, but the CHIPS and Science Act has already mobilized more than $52 billion in government subsidies. And companies like Intel, TSMC and Micron are building large-scale chip manufacturing plants in states like Ohio, Arizona and New York. And these are not just infrastructure projects. These states are actually slowly becoming career hubs for MS graduates in some specific areas like embedded systems, VLSI design, electronics and industrial engineering. And you know what? Semiconductor Industry Association ने ये कहा है that the production of US chips in the US is going to increase by 30% by 2030. इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब क्रिएशन पे, रिजल्टिंग इनटू मोर देन 60,000 जॉब्स. तो अगर आपकी MS डिग्री इस बूम से अलाइन हो जाती है, then you will not just become employable, you will become essential. The automation boom is next. Now that factories and industries are making a return to the US soil, they are definitely not returning in their old form. They are smarter, they are faster and they are more automated than ever. क्या आपको पता है कि यूएस में फैक्ट्री ऑटोमेशन पे काफी खर्चा होता है, एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम रोबोटिक आर्म्स टू फुल फ्लेजेड एआई ड्रिवन कंट्रोल सिस्टम्स. तो 2025 में आपको वनीला एमटेक प्रोग्राम परस्यू करने की कोई जरूरत नहीं है. रादर गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स, mechatronics, industrial AI, and automation engineering. By pursuing these programs, you are tapping into industries wherein hybrid skills, which are a mix of mechanical skills and AI algorithms, are highly in demand. Tesla की गीगा फैक्ट्रीज, GE के एविएशन प्लांट्स और बोइंग की स्मार्ट असेंबली लाइंस, ये कुछ ऐसी कंपनीज के एग्जाम्पल हैं जो ऐसे ग्रेजुएट्स को ढूंढ रही हैं जो मशीन और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का गैप ब्रिज करता है, which you will be able to do if you pursue any of the degrees that I mentioned before. Now let's shift our gears to supply chain and operations analytics. ये एक ऐसा डोमेन है जिसकी इम्पोर्टेंस स्काई रॉकेट कर गई थी कोविड-19 के टाइम पे, and it also showed us that how fragile global supply chains can be. In the ongoing boom, आप इसमें ऐड कर दो ट्रम्प का पुश जो उन्होंने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए आज तक कहा है, एंड देन व्हाट यू गेट इज अ लॉजिस्टिक्स रेवोल्यूशन. तो अगर आप एक MS डिग्री परस्यू करते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ऑपरेशन रिसर्च में या फिर इंडस्ट्रियल एनालिटिक्स में, तो आप सिर्फ एक बिजनेस डिग्री परस्यू नहीं कर रहे हो, you are actually pursuing a strategic asset. According to the US Bureau of Labor Statistics, सप्लाई चेन रिलेटेड रोल्स जो हैं वो नेशनल एवरेज से 30% ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, और इन रोल्स का हॉटस्पॉट है इंडियाना,
मिशिगन और नॉर्थ कैरोलिना। तो अगर आप इनमें से कोई एक डिग्री परस्यू करते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स कंपनीज में खुलेंगे बट ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ई कॉमर्स। फिजिकल इंडस्ट्रीज चाहे ट्रांसफॉर्म हो रही हो, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डिजिटल बैकबोन अभी भी अनटच्ड है। द क्लाउड इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग वेरी रैपिडली एंड इज अ नॉन नेगोशिएबल for companies across industries. Amazon, Google or Microsoft continue to invest heavily in cloud services. According to Gartner, the demand for cloud engineers, DevOps specialists and data infrastructure roles is going to increase by the end of 2027. तो अगर आप एक MS प्रोग्राम परस्यू करते हुए in computer science but your specialization is cloud computing, infrastructure engineering या फिर data engineering, then you are going to be in a better spot than other people when it comes to securing a job. और tech jobs का एक फायदा ये है that they are also highly H1B friendly, so that ways you will also be securing a valid visa while getting a job in the US. अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं ये तो समझ आ ही रहा है कि क्या क्या परस्यू करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या परस्यू नहीं करना चाहिए। So one thing that needs to be said out loud is that the data science bubble is just about to burst. 2024 में डेटा साइंस में एंट्री लेवल रोल्स 18% से कम हो गए थे, wherein the graduates in these programs increased by 30%, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि ग्रेजुएट्स की डिमांड कम होती जा रही है और सप्लाई बढ़ती जा रही है। तो आप समझ ही सकते हो कि डेटा साइंस में कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जॉब्स इंक्रीज नहीं हो रही हैं। तो एक ऐसी डिग्री जो आपको डेटा साइंस इंडस्ट्री की तरफ ले जाती है, उसको 2025 में परस्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स योर रोल माइट जस्ट बिकम ऑब्सोल्यूट। लेकिन अगर आप अपनी डेटा साइंस डिग्री में स्पेशलाइजेशन परस्यू कर रहे हो या पीएचडी परस्यू कर रहे हो, देन यू स्टिल माइट हैव सम होप। सिमिलर इज द केस फॉर एमबीएस। नॉन टॉप टियर एमबीएस को जॉब मिलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है because the whole industry is going through an upheaval. So unless you're combining your business background with a relevant technical skill जैसे कि supply chain technology या फिर product analytics, आपको एक MBA वो job security नहीं दे सकता 2025 में जो शायद 10 साल पहले MBA pursue करने के बाद guaranteed होती। Now let's talk about the exciting part, the future facing careers that are booming under the radar quietly. First of all, it's space tech and satellite AI. आपको पता है कि यूएस की स्पेस इकोनॉमी इज गोइंग टू हिट $1 ट्रिलियन in 2030 और कंपनीज जैसे कि SpaceX, रॉकेट लैब्स और प्लैनेट लैब्स ऐसे इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रही हैं जो काम कर सकते हैं AI पावर्ड सैटेलाइट इमेजरी पे, रिमोट सेंसिंग पे और इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स पे। तो अगर आपकी MS डिग्री कंप्यूटर विजन में है या फिर एरोस्पेस AI में है या फिर सेंसिंग डेटा एनालिटिक्स में है, देन यू आर गोइंग टू एंटर अ वेरी एक्साइटिंग पीरियड ऑफ स्पेस रेवोल्यूशन। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन के बारे में। ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो लगातार ग्रो कर रही हैं। वन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिजिटल थ्रेट्स, बट सेकेंड बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स प्रो क्रिप्टो लीनिंग्स। 2024 में साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये प्रेडिक्ट किया था कि 2025 में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब रोल्स बढ़ के 3.5 मिलियन तक हिट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अब अक्रॉस इंडस्ट्रीज अडॉप्ट हो रही है, स्पेशली इन फिनटेक, सप्लाई चेन एंड ऑल्सो इन डिफेंस सेक्टर्स। तो अगर आप एक MS डिग्री परस्यू करते हो इन साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट या फिर इंफॉर्मेशन एश्योरेंस में, then you will be placed in one of the most future-proof careers of this decade by just pursuing a degree in any of these domains. Last but not the least, let's talk about bioinformatics and healthcare AI. जैसे जैसे अमेरिका की पॉपुलेशन एजिंग की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका डिजिटल हेल्थ अडॉप्शन भी बढ़ जाएगा। एंड दीज आर द टू इंडस्ट्रीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ drastic transformation in the coming years. According to Precedence Research, the healthcare AI industry is expected to grow at a staggering 37% compound annual growth rate through 2032. तो अगर आपकी MS डिग्री कंबाइन करती है बायोलॉजी को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को और डेटा साइंस को,
तो आपको हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक लैब्स में और बायोटेक फर्म्स में आराम से जॉब मिल जाएगी। सो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है दैट इन ट्रम्प्स न्यू अमेरिका you need more than an MS degree. What you need is an alignment. So what you need to do is align your MS degree to growing sectors, tech-backed industries and government supported economic initiative. और ये एक ऐसी टिप है जो आपको 2025 में भी मदद करेगी और 2035 में भी। Don't just chase theoretical knowledge. Get internships, work on capstone projects and try to build structures to solve real world problems. Those things will way more higher than your high CGPA. तो अब हर्ड फॉलो करने का कोई टाइम नहीं है. This is the time to follow your own path with precision, with purpose and with research backed decisions. तो मुझे अभी कमेंट्स में जाके बताओ कि आप कौन सी MS डिग्री परस्यू करोगे 2026 में और क्यों. हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को करेंगे आसान. Till then, stay safe, stay healthy and keep paying your dues for a better tomorrow.